یہ ہے پاکستانی گمنام، وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ دے کر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک خاموش ورثہ چھوڑ گئے۔ آئیے ان کی کہانی سنیں، ان کے نقوش خاموشی کو لفظوں میں ڈھالیں، تاکہ کل کا مورخ یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنے گمنام ہیروز کو بھلا دیا۔ پیش ہے گمنام کی سنسنی خیز داستان۔ اندھیرا پوری طرح چھایا ہوا تھا، اوپر سے برفانی طوفان نے ان کی سانسیں جما دی تھیں، لیکن پھر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ رات گزار سکیں۔ عمران دانت بجاتے ہوئے بولا، یار کتنی ہی سرد راتیں دیکھی ہیں، لیکن ایسی سردی سے تو اللہ ہی بچائے۔ وہ کپکپاتا ہوا رفتار بڑھا رہا تھا تاکہ تیمور اور بلال کے ساتھ قدم ملا سکے۔ تیمور نے گہری سانس لی اور کہا، حرکت میں برکت ہے، اگر ہم رک گئے تو یہیں فریزر آن ہو جائے گا۔ یہ سن کر عمران نے اور تیزی دکھائی، لیکن تیمور کے لہجے میں سنجیدگی اتر آئی۔ بہتر ہوگا ہم کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ لیں، ورنہ مجھے ڈر ہے صبح کی روشنی دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ سن کر سب کی رفتار آہستہ ہو گئی اور آنکھیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں۔ اچانک بلال کی آواز گونجی، ادھر آؤ، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ ہے۔ وہ سب اس کی طرف بڑھے۔ سامنے برف کے اندر ایک گڑھا چھپا ہوا تھا جس کا دہانہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے شک بھری نظروں سے بلال کو دیکھا، یہ تو نے اس اندھیرے میں کیسے ڈھونڈ لیا؟ بلال نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا، ڈھونڈا نہیں، گرنے لگا تھا، پیر اندر گیا تو برف ہٹی اور یہ کھل گیا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر جائزہ لیا، پھر بغیر وقت ضائع کیے بیگ سے بیلچہ نکالا اور گڑھے کا منہ کھودنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اتنی جگہ بن گئی کہ ایک بندہ جھک کر اندر جا سکے۔ سب سے پہلے وہ خود اندر گیا۔ اندر یہ ایک چھوٹی سی غار تھی، بالکل قدرتی پناہ گاہ۔ باقی تینوں بھی فوراً اس کے پیچھے آ گئے۔ اندر آتے ہی عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بے ساختہ کہا، اوہ یار، ایسا سکون شاید زندگی میں کبھی نہیں ملا جتنا آج ملا ہے۔ اس نے بیگ سے ایک ریچارج لیمپ نکالا، کونے میں رکھ دیا اور دوسرا بیگ اتارنے لگا۔ کچھ لکڑیاں نکالیں اور آگ جلانے کی کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں غار خوشگوار حرارت سے بھر گیا۔ باہر موت جیسی سردی تھی اور اندر زندگی کا سکون۔ عمران آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے بولا، اب ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے آگے تب ہی نکلیں گے جب موسم کھل جائے گا۔ ایسی برف میں سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس پر تیمور نے سخت تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا، گنجی کبوتری اور محلوں میں ڈیرا، اگر سارا سال موسم ایسا ہی رہا تو کیا تو اسی غار میں سڑتا رہے گا؟ تیمور نے ہاتھ اٹھا کر کہا، دوست، جو بھی کرنا ہے انہی ایک دو دن میں کرنا ہے، ورنہ وہاں ڈگنیٹی میں قیامت آ جائے گی اور ہم سب اسی آگ میں جل کر مر جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی بڑی مشکل سے انہیں قائل کیا ہے۔ یہ سن کر عمران نے نظریں جھکا لیں۔ اچانک بلال نے نقشہ پھیلایا اور انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہاں دیکھ، اس جگہ پر سرخ نشان لگا ہوا ہے۔ یار، اس کا مطلب میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ تیمور نے موبائل نکالا اور وہی نقشہ زوم کرتے ہوئے دیکھا، پھر چونک کر بولا، یہ تیرے پاس کدھر سے آیا؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر جواب دیا، او بھائی، تو نے ہی بھیجا تھا، اسی کو جواز بنا کے میں نے سیکشن کمانڈر سے یہاں آنے کی اجازت لی۔ تیمور نے اسے ایسے گھورا جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں نے تو یہ نقشہ بھیجا ہی نہیں، ہو سکتا ہے تو نے غلطی سے بھیج دیا ہو۔ خیر، جو بھی ہوا ٹھیک ہوا، اگر یہ میرے پاس نہ آتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ تیمور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن پھر سنجیدہ ہو کر بولا،
मुझे लगता है ये कोई खतरनाक जगह है और यही हमारी असल मंजिल भी है, क्योंकि इसके आगे नक्शे में कुछ भी वाज़ेह नहीं। बिलाल ने कहकहा लगाया, चलो फिर देख लेते हैं इन मगरमच्छ के बच्चों को। ये कहकर सबने अपने स्लीपिंग बैग बिछाए और गार की खामोशी में लेट गए। बर्फानी तूफान की गूंज बाहर हौलनाक मंजर बना रही थी, लेकिन अंदर चंद लम्हों में नींद की देवी उन सब पर मेहरबान हो गई। सुबह की फिजा धुंध के दबीज पर्दे में लिपटी हुई थी। इनाया रात को देर से सोई थी, मगर जाने क्यों जल्द ही इसकी आंख खुल गई। वो बेड पर नीम दराज मफलर लपेटे सोचों के गर्दाब में डूबी हुई थी। पता नहीं ममा बाबा किस हाल में होंगे, इस कमीने जवाद ने इन्हें मेरे बारे में बताया भी होगा या नहीं। ये सोचकर इसका दिल कटने लगा। आतिशदान में आग बुझ चुकी थी और कमरे में सर्दी रेंग रही थी। वो हिम्मत करके उठी, खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर झांका। हर तरफ गहरी धुंध का राज था। वो कोने से लकड़ियां उठा लाई और आतिशदान में डाल दी। चंद ही लम्हों में शोले भड़कने लगे और कमरे में कदरे हरारत फैल गई। वो बेड पर आकर बैठ गई और खुद से आहिस्ता से बोली, वो अल्फा 1 जाने मुझे कहाँ तलाश कर रहा होगा। उसे क्या पता मैं यहाँ कैद हूँ। इनाया की आंखों में नमी उतर आई। आज जाने क्यों उसे रोना आ रहा था। वो थक चुकी थी, टूट चुकी थी। मेरा कसूर आखिर है क्या? इसने लरजती आवाज़ में कहा। मैंने तो सिर्फ अल्फा 1 का ट्रेंड चलाया था बस, और वही एक ट्रेंड मेरे गले का फंदा बन गया। अनजान सर्द मुल्क के किसी अजनबी गोशे में बनाई गई इस इमारत के एक कमरे में वो कैद थी, और इसे ये तक मालूम नहीं था कि वो किस जुर्म में यहाँ लाई गई है। इसने मुट्ठी भैंच ली और लब काटते हुए बड़बड़ाई, अल्लाह करे वो अल्फा 1 तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का ऐसा हश्र करे कि तुम इस दिन पर रोओ जब तुमने इसके रास्ते में आने की गलती की थी। इनाया के लहजे में बद्दुआ और करब का इम्तिजाज था। अभी वो ये अल्फाज कह ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और डैनियल अंदर दाखिल हुआ। ये वो वाहिद शख्स था जिसे देखकर इसका खून खोलने लगता था। आज भी वही हुआ। इनाया ने बेजारी और गुस्से से मुंह मोड़ लिया, मगर डैनियल हमेशा की तरह दांत निकालते हुए मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसे और भी जहर लगती थी। क्या बात है लड़की, ये दिन ब दिन इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो? ना हमने तुम्हें कोई तकलीफ दी, ना खाने पीने में कोई कमी छोड़ी, फिर भी तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। डैनियल हैरानी से बोला, तो वो बस इसे घूर कर रह गई। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। फिर अब तुमसे खुश अखलाकी की कोई वजह नहीं बचती। वो तनकते हुए बोली, तो डैनियल ने पूरी बतीसी निकाल दी। अरे मैं भी तो हुक्म का गुलाम हूँ, जो हुक्म मिलता है वही करता हूँ। अब उसमें मेरा क्या कसूर है? डैनियल बात करने के मूड में नज़र आ रहा था, इसीलिए बात को तूल देता चला गया। मुझे भूख लगी है, कोई नाश्ता मिल सकता है, या ये भी ऊपर से ऑर्डर है कि इस लड़की को खाने पीने में भी तंग रखो। वो तंजिया लहजे में बोली, तो डैनियल दोनों हाथ उठाकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद गरम टोस्ट, मक्खन, जैम और काफ़ी इसके कमरे में पहुंचा दी गई। ख्याल रखा जाता नहीं और चले हैं बड़े मिशन करने। इनाया स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए बड़बड़ाई, अगर और देर हो जाती तो टोस्ट अकड़कर पत्थर बन जाता, जो उसे किसी सूरत मंजूर ना था। अभी तुम्हारा बाप यहाँ पहुँचेगा, फिर मैं देखूंगी इस बर्फज़ार में तुम कहाँ तक भागते हो, क्योंकि ऐसा खेल खेलने में वो माहिर है। अपने शिकार को थका कर मारता है। इनाया टोस्ट को काफ़ी में डुबोकर मुंह में रखते हुए मुस्कुराई और फिर मज़े से नाश्ता करने लगी। सुबह की फिजा बर्फ जैसी यकबस्ता थी। शुक्र था कि रात वो सब ठंड की शिद्दत से मरे नहीं,
क्योंकि जो हालात रात को थे, ये किसी मोजिज़े से कम ना था कि वो नींद पूरी करके सही सलामत जाग गए। सुल्तान की आंख खुली तो उसने एक नज़र अपने साथियों पर डाली। सब गहरी नींद में डूबे हुए थे। गार के कोने में जलता लैंप अब भी रोशनी फैला रहा था। बैटरियां वाकई कमाल की निकली थीं। वो आहिस्तगी से अपने स्लीपिंग बैग से निकला और दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ा, जिसे रात को अच्छी तरह बंद किया गया था। दिल में खदशा था कि कहीं रात की बर्फबारी ने ये दहाना बंद ना कर दिया हो और ये गार ही उन सब की कब्र बन जाए। इसने हौसला करके दहाने पर जमी बर्फ हटानी शुरू की। बर्फ नरम थी इसलिए बहती गई, मगर फिर भी खासा वक्त लग गया। अचानक ही शिगाफ खुल गया और बाहर की ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। ठंडी हवा ने जैसे इसके वजूद को बर्फ बना डाला। बाहर गहरी धुंध छाई थी, मगर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये सिर्फ धुंध है या तूफान अभी बाकी है। क्या वक्त हुआ है भाई? गार के अंदर से तैमूर की खुमार आलूद आवाज़ उभरी। एक तो हर वक्त आप जागते ही रहते हैं। सुल्तान ने हंसते हुए पलटकर जवाब दिया, और आप जनाब ख्वाब में भी ऐश आफ्ताब के दीदार में मसरूफ़ रहते हैं या फिर कोई नया मुहावरा तरतीब दे रहे होते हैं। ये सुनकर तैमूर की नींद काफूर हो गई। सुबह सुबह भी तेरा ये मनहूस स्टेज ड्रामा बंद नहीं होता, और 1000 बार कहा है अपने और ऐशल के बीच मेरा नाम मत लाया कर। वो उठकर बैठ गया और गुस्से से घोरता रहा। सुल्तान ने शरारत से आंख दबाई। वैसे शुरू किसने किया था? और ऐशल बाजी का तज़किरा किए बगैर तो जनाब की आंखें भी नहीं खुलती। उसी लिए मैंने हैवी डोज देकर फौरन बेदार कर डाला। तैमूर बस दांत पीस कर रह गया और जवाब में खामोश ही रहा। ओए यार, तुम दोनों सुबह सुबह फिरना शुरू हो जाना। इमरान कस मसाते हुए स्लीपिंग बैग से उठ बैठा। एक तो मर मर के नींद नसीब होती है और तुम दोनों अभी तक ऐश आफ्ताब और इनाया अरबाज के चक्कर में उलझे हुए हो। तैमूर ने तेज नज़रों से सुल्तान को घूरा और बोला, लो जी, डॉक्टरनी साहिबा के हस्बैंड को भी जुकाम लग गया। मैंने क्या बोला है? बस बाहर का जायज़ा ले रहा था कि उसने मुझे जगत मारी, तो मैंने भी जवाब दे दिया। सुल्तान ने मज़े से इमरान को भी बहस में घसीट लिया, तो इमरान एक जमाई लेते हुए बोला, मैं तो तुम दोनों के मुंह नहीं लगना चाहता। वो पुरसुकून अंदाज में आग जलाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि अभी सबको भरपूर नाश्ता करना था और इसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र उनका मुंतज़िर था। सफ़र जिसका अंजाम वो तीनों सोच भी नहीं सकते थे। उसी वक्त तैमूर ने मोबाइल निकाला और नक्शे पर जूम करते हुए लाल निशान तक का रास्ता दिखाया। यहाँ से इस निशान तक पहुँचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, और वो भी बर्फ़ के उन रेगज़ारों पर चलते हुए। देखना ये है कि हमें मंजिल तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है। सुल्तान गौर से नक्शा देख रहा था, फिर बोला, अगर हम ये घुमावदार रास्ता छोड़कर सीधा निशान तक जाने की कोशिश करें तो आधे से ज़्यादा वक्त बच सकता है। तैमूर ने अचंभे से उसे घूरा। जो रास्ता यहाँ नक्शे में भी वाज़ेह नहीं है, वो तू आँखों से देख रहा है। जाबजा बर्फपोश टीले हैं, इन पर चढ़ना और उतरना तेरे बस की बात है, हमसे तो ना हो पाएगा भाई। सुल्तान ने दांत निकालकर हंसी दबा ली। दांत अंदर कर, मैं कोई मिस एडवेंचर करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन इसने तैमूर के दोनों हाथ थाम लिए। देख दोस्त, हर दिन ईद का दिन नहीं होता। कल हम तूफान से बच गए, मगर ये रोज़ नहीं होगा। अगर यूं ही चलते रहे तो वक्त भी ज़ाया होगा और खुराक भी ख़त्म हो जाएगी। शॉर्टकट कठिन ज़रूर है, मगर जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। तैमूर लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर धीरे से बोला, मिशन पूरा होना ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? सुल्तान ने खुले दिल से मुस्कुरा कर जवाब दिया,
तो फिर वक्त आने पर वो भी देख लेंगे। अभी तो बस आगे बढ़ना है। इज्जत व वक़ार, यही तो बड़ाई का असल नाम है। और हमें यहाँ इन्हीं मुश्किलात से निमटने की ट्रेनिंग दी गई है। अब जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग ना पीछे हट सकते हैं और ना ही वक्त ज़ाया कर सकते हैं। तो बस नाश्ता करो और निकलने की तैयारी पकड़ो। हमें अपना रूट बदलना होगा। सुल्तान फैसला कून लहजे में बोला, तो तैमूर ने खामोशी से सर हिला दिया। फिर इसने रुख मोड़कर इमरान और बिलाल को अगला लाइहा अमल बताया और दोनों ने भी तायद में सर हिला दिया। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।